Dear student, the topic of the day is precipitation. What is precipitation? It's actually rainfall. So, before we move into what is rainfall, we need to talk about humidity. What is humidity? It's the amount of water vapor present in air. Okay. Humidity is nothing but the amount of water vapor which is present in the air. Okay. Now, we need to understand what is the different types of humidity. Okay. Before moving into that, I would like to tell you that you have to have highest amount of concentration in order to understand this conceptual topic. If you miss anything right now, you won't be able to understand anything in the precipitation or the rainfall chapter. So, as I have told you, humidity is nothing but it is the amount of water vapor present in the air. What are different types of humidity? Number one, which is very important, is absolute humidity. Okay, what is absolute humidity? It is the amount of water vapor expressed in gram per meter per cubic meter of air. ठीक है? For example, if I say there is 9 gram of air per meter cube right now in Delhi, I'm not telling you what is the temperature of Delhi right now. ठीक है? I'm just telling you what is the amount of air present by volume. Okay. Okay. By volume. Here, I'm not telling you what is the temperature right now. Why temperature is also important? Because as the air is warmer, the its ability to hold water vapor increases. Okay. So you must remember that absolute humidity is expression of amount of water vapor present per meter cube. Okay, nothing less, nothing more, and no mention of temperature. Temperature is not mentioned over here. Okay, this you should take in your mind right now, and you should remember this always. In absolute humidity, temperature is not mentioned. It has nothing to do with temperature in this definition of humidity. It is talking just about the amount of water vapor present in per cubic meter of air. That's it. आपके यहाँ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? अभी जो एयर पर मीटर क्यूब में है वही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है. व्हाट इज एब्सोल्यूट? सच. सच क्या है? अभी जो पर मीटर क्यूब में प्रेजेंट है. टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है आपका, व्हाट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. ठीक है. नाउ
you will have to understand what is specific humidity. देखो, specific humidity is nothing. अच्छा, going before to specific humidity, I will talk about absolute humidity a bit in detail. ठीक है, absolute humidity. ठीक है, it must be dependent on few things. ठीक है, so if this is earth is tilted on its axis, and this is 0 degree latitude, and this is 90 degree latitude. 0 degree latitude, 90 degree latitude. Can you tell me absolute humidity will be high where? अभी अगर आप इक्वेटर पे चले जाओ तो वहां पर वाटर वेपर पर मीटर क्यूब ज्यादा होगा या पोल्स पर ज्यादा होगा? ठीक है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी विल बी हाईएस्ट एट इक्वेटर एंड लीस्ट एट पोल्स. व्हाई? रीजन बीइंग, इक्वेटर में आपका गुड अमाउंट ऑफ वाटर बॉडीज है. ठीक है, एंड गुड अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंसुलेशन, these water will rise up, they will become vapor, whereas at poles insulation is very less. एंगल देखो, insulation का एंगल slanting है, and the surface is totally frozen, so there is no water available to escape, neither is the energy needed for the water vapor to escape over there. That means one can say absolute humidity is inversely proportional to latitude. Absolute humidity inversely proportional to latitude. ठीक है, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी घटेगी. यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, लैटिट्यूड बढ़ रहा है. ठीक है, लैटिट्यूड इज इंक्रीजिंग दिस वे. ठीक है, अगर यहां पर आपका 70 डिग्री लैटिट्यूड है तो आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वेटर से बहुत कम है. ठीक है, तो इन जनरल सेंस वी कैन से as the latitude will increase, absolute humidity will decrease. Anyone having any doubt over here, you may just ask. किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? अगर है तो पूछो. ठीक है, आई एम टीचिंग a bit slow because it is conceptual part today. So right now just make notes of whatever I am teaching. ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. Specific humidity is equal to amount of water vapor in air
expressed in gram. ठीक है, by weight of air mass, ठीक है, equals to gram of water vapor per kg of air. ठीक है, we are over here also not mentioning about temperature. ठीक है, we are over here not mentioning temperature, we are just mentioning that in previous absolute humidity it was measured in terms of volume, it is now measured in terms of air mass. ठीक है, amount of water vapor expressed in gram by weight of air mass is specific humidity. ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? ग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, वी आर नॉट मेंशनिंग अबाउट टेम्परेचर ओवर हियर. ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब जब इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको पूरा कंसंट्रेशन रखना है. विल टॉक अबाउट ठीक है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ है? कितना कुवत है. व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड द वाटर. ठीक है, व्हाट इज द capacity of air to hold the water. What does it mean? देखो, एयर कितना वाटर होल्ड कर सकता है, एंड इट विल डिपेंड ऑन व्हाट? इट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. व्हाई इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? देखो, आपका जो एयर है, ठीक है, अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एयर का इंटरमोलिकुलर स्पेस कंपेयर टू एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होगा. एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड द इंटरमोलिकुलर स्पेस विल बी मोर. वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अगर एयर में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूल्स हैं एयर में. ठीक है, they are we are not talking about atoms, we are talking about molecules. So if the intermolecular space will be more amount of water vapor can be held. ठीक है, that means warm air has more capacity to hold humidity. Water vapor, okay, that also means colder air holds less of water molecules compared to
वार्म एयर है या नहीं है? ठीक है, दो चीज बहुत ही क्लियर हो गया है। कोल्डर एयर होल्ड्स लेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंपेयर टू वार्म एयर। ठीक है, एंड वार्म एयर हैज मोर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। ठीक है, तो अब विल टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ऑफ एयर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, ऑफ एयर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसको डिफाइन कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे फिर से। टोटल टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर वेपर दैट दैट एन एयर मास कैन होल्ड एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर देखो, टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर पर मीटर क्यूब हेल्ड कर सकता है? 7 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, काइंडली नोट इट डाउन। सेकेंड, टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 9 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर थर्ड है टेम्परेचर तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 ग्राम पर मीटर क्यूब। फोर्थ, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 17 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 20 ग्राम पर मीटर क्यूब। अगर टेम्परेचर आई थिंक 40 डिग्री में इतना है, हाँ 40 डिग्री है तो 51 ग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद वाला बेटा मैंने भी याद नहीं रखा है। ठीक है, ये आपका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ऑफ एयर है। ठीक है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ऑफ एयर? टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर दैट दैट an air mass can hold at a given temperature. Right now, we will also try to understand what is relative humidity. Now, let's talk about relative humidity. ठीक है, relative humidity is nothing but total amount of water vapor divided by humidity capacity. ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर
जो होल्ड कर सकता है एयर मास, ठीक है, बाय वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिड कैपेसिटी आपको पता है, HC, यहां पर अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड and absolute humidity of Delhi is 10 gram per meter cube. So the relative humidity will be equal to 10 gram per meter cube. And at 30 degree centigrade, what is the humidity capacity? Humidity capacity is this much. So we'll divide by 20 gram per meter cube. दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। परसेंटेज फॉर्म के लिए इंटू 100 करना होता है, ठीक है, ठीक है। 50%। तो जब 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो बारिश नहीं होगा, बिकॉज सेचुरेशन इज नॉट रीच्ड। बचपन में कभी आपने शरबत बनाई है, जस्ट इन केस इफ यू हैव एवर ट्राइड, तो पानी में जब चीनी डालते हो तो कब तक डाल सकते हो? जब तक वाटर सेचुरेशन लेवल नहीं पहुंच जाए। अगर वाटर का सेचुरेशन लेवल पहुंच गया, दैट मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का, उसके बीच में स्पेस नहीं बचा, तो अब सुगर डिजोल्व नहीं होगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बोल रही है कि 50% स्पेस खाली है, अभी सिर्फ 50% ऑक्यूपाइड है, तो अभी 50% और वाटर लिया जा सकता है। अब मान लो सेम टेम्परेचर पर दूसरा कंडीशन में दिखाता हूं, ये पहला कंडीशन है। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड कंडीशन। टेम्परेचर सेम है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज अराउंड 22 ग्राम पर मीटर क्यूब। रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 22 ग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 20 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर मीटर कटा, ग्राम ग्राम कटा, इंटू 100 करना था परसेंटेज टर्म में लिखने के लिए। ये 11 है, ये 10 है, तो कितना हुआ? 100 10%। 110% का मतलब हुआ कि जो जगह थी उससे 10% एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है। तो क्या हुआ? वाटर से तो क्या हुआ? एयर सेचुरेटेड है, तो बारिश होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि अब उस होल्ड नहीं कर पा रहा है, होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। तो पानी तो गिरेगा ही गिरेगा मेरे भाई, ठीक है। तो दैट मीन्स वेन एवर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 100%, रेनफॉल इज इनएविटेबल, होना ही होना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यू मे जस्ट टेल मी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो मुझे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, whenever relative humidity is greater than 100%, rainfall will occur, ठीक है, irrespective of anything and everything, ठीक है। So now let's talk about what are the condition for precipitation.
है, वार्म एयर, ठीक है, वार्म एयर है तो उसमें एनर्जी है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस। वार्म एयर इज राइजिंग, वार्म एयर व्हेन राइजिंग, वार्म एयर क्यों जरूरी है? वार्म एयर इसलिए जरूरी है कि इंटर एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होगा तभी तो वाटर वेपर आ पाएगा उसके अंदर। कोल्ड एयर इज ऑलवेज ड्राई, इसीलिए आप सर्दियों में ओठों पर क्या लगाते हैं? वैसलीन, लिप गार्ड। चेहरे पे क्या लगाते हैं? मॉइस्चर, आपका चमकता चांद सा चेहरा, उस पर मॉइस्चर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बिकॉज द एटमोस्फेयर इज टोटली ड्राई, so the required amount of moisture you are not getting from atmosphere, right? And since you are not getting required amount of moisture from the air, you need to apply moisture, ठीक है। अभी गर्मी में आप मॉइस्चर अप्लाई करके दिखा दो, जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वार्म एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज देयर। अभी भी अगर बारिश नहीं हो रही है तो मिनिमम 9% आपका वाटर मॉलिक्यूल्स होगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है, मिनिमम होगा, ठीक है। तो उस वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से आपके ओंठ सूखते नहीं है, आपका चेहरा सूखता नहीं है, इट डज नॉट रन ड्राई। तो वार्म एयर विल ऑलवेज होल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वार्म एयर विल ऑलवेज राइज। अब जब राइज होगा विथ एवरी 1000 मीटर और 1 किलोमीटर, द टेम्परेचर विल ड्रॉप बाय 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके ऊपर गया तो कितना? 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर गया तो मान के चलो कितना लिख सकते हैं? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। रिलेटिव टर्म में मैं बता रहा हूं, तो ये 3000 मीटर पे ये हालत है। तो अगर कोई हॉट एयर है एंड इट राइजेस टू 3000 मीटर ऑल ऑफ ए सडन विद इन 1 आवर, देर इज ह्यूज ड्रॉप इन टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर का ड्रॉप होगा तो वाटर विल कंडेंस और नॉट कंडेंस एंड वाटर विल फॉल। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर रेनफॉल। सुनो, आप फ्रिज का पानी लो, ठीक है, पानी को बियर कैन में डाल दो और उसे छोड़ दो, या ग्लास में डाल दो, उसे छोड़ दो। आप क्या देखोगे? ग्लास के सरफेस पे ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। ये ड्रॉपलेट्स आपने कहीं से मंगाए थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके? नहीं, ये ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे एटमॉस्फेयर में व्हेन दे इनकाउंटर्ड ए कूलर सरफेस। तो फिर दे कंडेंस्ड, ठीक है। यहां पे टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और 3 किलोमीटर ऊपर सिर्फ गया है हवा, तो कितना ड्रॉप हो गया है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। और इससे 1 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1.5 होगा। तो -1.5 आने से पहले ही वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आना शुरू होगा एंड इट विल बिकम हेवियर फॉर द वाटर एयर टू होल्ड। दैट मीन्स रेनफॉल विल बिकम इमिनेंट। तो इस चीज को ध्यान में हमेशा रखिए, राइजिंग एयर लीड्स टू रेनफॉल। समझ में आया या नहीं आया? आया ना? दूसरा चीज देखो, लो प्रेशर विल लीड्स टू रेनफॉल, ठीक है। क्यों? अगेन, surface of the earth, air is rising, when air is rising it is moving against the gravity। तो यहां पर क्या हुआ? हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर? लो प्रेशर होगा, ठीक है। कोल्डर एयर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। तो कौन सा एयर राइज कर रहा है?
लो प्रेशर एरिया में एयर राइज कर रहा है, तो मैंने आपको हमेशा बोला था राइजिंग एयर विल लीड टू रेनफॉल, तो लो प्रेशर विल लीड टू, एक ही तरीका है पर मैं बता अलग अलग चीज रहा हूं, ठीक है। लो प्रेशर रेनफॉल, राइजिंग एयर रेनफॉल, हाई प्रेशर नो रेनफॉल, ठीक है। तो हाई प्रेशर कहां पे है आपका, पोलर एरिया में है। पोलर एरिया में क्या है, कोल्डर एयर है, कोल्डर एयर है तो कोल्डर एयर के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो गया है, ठीक है। और जब कम हो गया है तो क्या है, एयर कंटेन नहीं कर सकता है वाटर वेपर। दूसरा, इट इज सबसाइडिंग, सबसाइडिंग मतलब नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरता हुआ एयर कोई रेनफॉल नहीं दे सकता है, नीचे गिरता हुआ इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता है, ऊपर उड़ता हुआ इंसान ही आपको कुछ दे सकता है। बस ऐसे याद रखो। यहां तक समझ में आया या नहीं, बिकॉज इट इज इंटायरली कॉन्सेप्चुअल पार्ट, यू विल हैव टू रिमेंबर इट। और इसी के ऊपर पूरा क्लाइमेटोलॉजी बहुत इजी हो जाएगा। मैं आज का रिकॉर्डिंग आज ही डाल दूंगा, सो दैट यू गाइज कैन रिवाइज इट एटलीस्ट 2 to 3 times, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट, सब बताओ मुझे हाँ या ना। नो यस, अच्छा, सिर्फ दो ही लोग को समझ में आया, ठीक है, बाकी कोई जवाब ही नहीं दे रहा। चलो कोई नहीं, जो साइलेंट लिसनर सब होते हैं ना, भगवान इनसे बचाए। चलो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेन, मैं क्लाउड्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल पढ़ा रहा हूँ, क्लाउड्स इसके बाद पढ़ाऊंगा। इंटायर ज्योग्राफी इज नथिंग बट साइंस, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी साइंस है, ठीक है। डेमोग्राफिक ज्योग्राफी इज साइंस प्लस आर्ट्स, ठीक है। एनीवे, rainfall can be classified into convectional rainfall, orographic rainfall, frontal rainfall. This classification of rainfall is dependent on what has caused the rainfall. What is the causing factors? ठीक है। So the causing factors are conventional rainfall में कन्वेक्शनल करंट होगा, ओरोग्राफिक का मतलब होता है माउंटेन, ठीक है, तो माउंटेन होगा। और फ्रंटल रेनफॉल का जो रीजन है फॉर दिस रेनफॉल, उसको कहेंगे, वो फ्रंटोजेनेसिस की वजह से वो रेनफॉल बनता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एयर फ्रंट्स, ठीक है। सो होप you have understood till now, and when I will explain next, you should be able to understand it. What is convectional rainfall, देखो भाई, कन्वेक्शनल करंट कहां बनता है, कन्वेक्शनल करंट, ये लैंड है, ये ओशन है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, सूरज की किरणें आ रही हैं, ठीक है। इन किरणों की वजह से वाटर वार्म हो रहा है, और वार्म होने की वजह से राइज कर रहा है, ठीक है, राइज कर
ठीक है। यहां पे ऊपर में आप बोलोगे कि सर ये मुड़ क्यों रहा है, देखो भाई, ट्रोपोपॉज है, ठीक है। ट्रोपोपॉज के ऊपर है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर बहुत हाई डेंसिटी होता है, उस वो मॉइस्चर लेडन एयर वहां ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है, बिकॉज वो एज ए वॉल काम करता है, ठीक है। तो ये इसका हाइट कितना है, 18 किलोमीटर। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं कि उतना ऊपर जाना चाहिए, पर अगर चला भी गया 18 किलोमीटर तक तो बीच में ही तो ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो आपको पता ही है, सी ब्रीज चल रहा है इधर से, ठीक है। तो कन्वेक्शनल करंट रेनफॉल कराएगा। कहाँ पे कराएगा रेनफॉल, कोस्ट पे कराएगा। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, इक्वेटोरियल एरिया, इक्वेटोरियल कोस्टल एरिया ऑफ इक्वेटोरियल बेल्ट। दूसरा, कहाँ पे कराएगा कन्वेक्शनल करंट रेनफॉल, ये कराएगा आपका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब पोलर रीजन। सिर्फ इसको ध्यान में रखो, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया है वो वीडियो लेक्चर देख लेंगे, आई विल अपलोड द वीडियो लेक्चर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। बिकॉज सम ऑफ यू हैव ज्वाइंड लेट, तो वीडियो लेक्चर में बोल रहा हूँ शुरू से देखना होगा आपको, ठीक है। तो इक्वेटोरियल कोस्टल एरियाज में कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब पोलर रीजन में कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, कन्वेक्शनल रेनफॉल को लेके किसी को कोई डाउट है? ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, देखो, ये आपका माउंटेन है, ठीक है। यहां पे आपका वार्म एयर आ रहा है, ठीक है। वार्म एयर हैज इनकाउंटर्ड द माउंटेन, ठीक है। When the warm air has encountered the mountain, there is very high chance that it will force to go up. Why? It contains energy. इसके रास्ते में पहाड़ आ गया तो वे पहाड़ को जंप करके निकलने की कोशिश करेगा। सो इट इज राइजिंग। राइजिंग में क्या होगा, एडियाबेटिक लैप्स रेट, लैप्स टेम्परेचर विल fall down and it will lead to rainfall, ठीक है। So orographic rainfall is nothing but rainfall which forces air mass to elevate due to barrier is known as orographic rainfall, ठीक है। तो जिस तरफ बारिश हो रही है उधर क्या होगा, विंडवर्ड साइड। जिस तरफ बारिश नहीं हो रही उसको क्या कहेंगे, लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड में क्या हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो इसको कहते हैं रेन शैडो एरिया, ठीक है। इंटायर तिब्बत, उसमें बारिश नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि हिमालयाज ऑलरेडी एज ए बैरियर काम कर रहा है, और जब बैरियर काम कर रहा है तो सारी बारिश इधर हो जा रही है। इधर जो बादल जा रहा है उसमें एयर है ही नहीं, सॉरी, उसमें वाटर वेपर है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए आपका तिब्बत में क्या है, कोई बारिश नहीं है। लद्दाख का भी वही प्रॉब्लम है, लद्दाख से पहले 3 माउंटेन रेंज आ जाता है, ठीक है। तो लद्दाख क्या है, रेन शेडो एरिया है, तो इट इज ए कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। इसीलिए तिब्बत क्या है, तिब्बत इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ
कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, रेन शेडो एरिया। इस तरफ क्या है, इस तरफ है हमारा प्यारा अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड। और इसीलिए आपके यहाँ 6 मंथ हाई रेनफॉल होता है, और ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट 2 मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आपके यहाँ रेनफॉल होता है। अक्टूबर नवंबर टू सर्टेन एक्सटेंट दिसंबर, बिकॉज उस समय विंड ऐसे नहीं चलता है, विंड ऐसे आना शुरू होता है, ठीक है। पर आपका जो विंड है वो इंडियन ओशन से मॉइस्चर लेके आता है। इधर जो विंड विंटर्स में चलना शुरू होती है, ठीक है, ये अपने साथ जो इसको ईस्टर्लीज कहते हैं, ठीक है, ये अपने साथ मॉइस्चर खत्म करके आती है, क्योंकि लैंड मास ऑफ चाइना के ऊपर से आ रही है। कोस्टल एरिया में बारिश करा के निकल गई, उसके बाद उसको पानी मिला नहीं, मॉइस्चर मिला नहीं, और इधर फिर पानी नहीं आता है। लेकिन वापस जब ये क्रॉस करके इंडियन ओशन से इधर जाती है, बे ऑफ बंगाल से आगे बढ़ती है, तो इसको मिलता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में फिर ये मॉइस्चर लेडन हो जाता है, तो तमिलनाडु में बारिश होता है। क्यों बारिश होता है? क्योंकि तमिलनाडु के इस साइड है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? ओरोग्राफिक रेनफॉल समझ में आ गया। थर्ड है आपका फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, देखो, एक ये आपका लैंड सरफेस है, ठीक है, ये आपका कोल्ड एयर मास है। क्यों है कोल्ड एयर? क्योंकि ये कॉन्टिनेंटालिटी इसकी बहुत ज्यादा है, ये दूर है कोस्टल एरिया से, और विंटर का टाइम है, तो लैंड में इंसुलेशन कम आ रहा है, तो लैंड क्या है, कोल्ड है, उसके ऊपर जो एयर है उसका कोई मूवमेंट नहीं है फॉर ए लार्जर पीरियड ऑफ टाइम, सो द एयर प्रॉपर्टी इज सेम दैट ऑफ लैंड, सो दिस कोल्डर एयर मास इज देयर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आपका कोस्टल एरिया से वार्म एयर चला, ठीक है, वार्म एयर विंड से यहां तक पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद ये इनकाउंटर करता है कोल्ड एयर को, ठीक है। कोल्ड एयर नीचे है तो ऊपर जाएगा नहीं, तो वो फोर्स करेगा आपके वार्म एयर को राइज करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, वार्म एयर राइज कर जाएगा, लेकिन जहां पे वार्म एयर और कोल्ड एयर मिलेगा वहां पे ड्रॉप इन टेम्परेचर होगा, एंड दैट इज सडन। सो क्या होगा आपका, फ्रंट डेवलप होगा, कोल्ड एयर और हॉट एयर जहां मिल रहा है उस मीटिंग पॉइंट को कहते हैं fronts, air fronts, and there is sudden drop in temperature, and because of that there will be rainfall. So I have taught you in this lecture of around 45 minutes what is precipitation, how does precipitation, what is humidity, what are different types of humidity, how does relative humidity and absolute humidity and specific humidity and uh, humidity capacity, they play in a role in deciding whether there will be a rainfall or not, ठीक है। और जैसे आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% क्रॉस करता है तो आपका रेनफॉल होता है। रेनफॉल किस दो फैक्टर पर मेजरली डिपेंडेंट है? पहला है आपका वार्म एयर और राइजिंग एयर, उसी को दूसरे भाषा में क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल? कन्वेक्शनल रेनफॉल, orographic rainfall and frontal rainfall. So this is what is of today, ठीक है। मैं ये वीडियो अभी का अभी आपको दे दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। काइंडली वॉच इट, अंडरस्टैंड इट,
with full concentration. This is very much essential because your entire climatology is based on this logic. ठीक है, अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया तो आपको क्लाइमेटोलॉजी में कभी दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, इसमें मैंने एक चीज आपको नहीं बताया है, क्यों वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब पोलर रीजन में भी कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है. ये मैं आपको जब क्लाइमेटोलॉजी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा, क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कंसेप्चुअल डाउट पूछो, मैं बता देता हूं. फैक्चुअल डाउट मत पूछो, सर व्हाट इज सब पोलर एरिया, ये तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, व्हाट इज वेस्टर्न कोस्ट, व्हाट इज ईस्टर्न कोस्ट, ये पता होना चाहिए. ठीक है, कंसेप्चुअल डाउट है तो पूछिए मुझे. डाउट्स? और काइंडली बी ऑन टाइम. ठीक है, बात ये होता है ना, व्हेन यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड यू आर नेवर ऑन टाइम. व्हेन यू हैव टू पे फॉर समथिंग थिंग यू बिहेव प्रॉपरली. ठीक है, तो काइंडली बी ऑन टाइम. ठीक है, क्योंकि दिस क्लासेस इज एज पर शेड्यूल. मैंने शेड्यूल बना के देख लिया है, बच्चे उस शेड्यूल को देख ही नहीं रहे हैं. अगर साइंस क्लासेस शाम का मैंने बंद किया है तो शेड्यूल में मेंशन है. ठीक है, आपके क्लासेस वापस कब से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी शेड्यूल में मेंशन है. आई हैव गिवन यू शेड्यूल ऑफ ऑलमोस्ट 2 months. And whatever I am teaching, this will ensure that within 2 months you will be able to answer around 20 to 15 question 100% accurately in your UPSC examination. अभी तो है ना 25 तारीख को एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है. ठीक है, उसी में पता चल जाएगा आपको. ठीक है, तो दिस कोर्स विच इज लॉन्च फॉर 8 months, काइंडली बी ऑन टाइम. ठीक है, चलिए, thank you, take care. I will just upload this video so that you can make the most of it. Kindly watch it twice. ठीक है, thank you.